हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, पिछले कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप हो गया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सीबीएसई में आपको चैप्टर नंबर 6 मिलेगा और आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 है। Clear? Now come to the point. What is the meaning of life processes? Life processes means all those processes which are required for the survival of a living organism. It means the processes which a living organism perform to alive itself. They are called as life processes. ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस आती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इन सारी प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्टली इन दीज लाइफ प्रोसेसेस वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? Nutrition means intake of nutrients and their utilization for performing different metabolic activities of the living organism. ठीक है, हम किसी भी चीज के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं। मेनली द न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एंड main important components or the nutrients present in the food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, roughage, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। एज अ फूड हम इसे इनगल्फ करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग की ही बात हम नहीं करेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स पे या फूड पे डिपेंड करता है। This nutrition is basically divided into two types. First one is autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition. Clear? Firstly, we will discuss in detail about autotrophic nutrition and after that we will take the heterotrophic nutrition. First of all, autotrophic nutrition. The word auto means self. Clear? यहाँ पर auto का मतलब क्या होता है? Self. And troph means to obtain or to obtain the nutrition. To obtain. It means in this type of nutrition, the organism synthesize its own food and use for their metabolic activities. ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड सिंथेसाइज करता है और उसे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी यूज करता है और साथ में जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी देता है ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। ठीक है, ओनली द ग्रीन प्लांट्स एंड सम टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, द ब्लू ग्रीन एल्गीज। ठीक है, सिर्फ यही ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे हैं अर्थ पे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं या अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स, यू ऑल नो दैट ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिविटी कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। Now, due to this process, the plants synthesize their food with the help of inorganic material like water and carbon dioxide. ठीक है, तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स किस तरह से फूड सिंथेसाइज करते हैं और कहाँ कहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. We all know that photosynthesis is the process of synthesizing food by green plants
For this purpose, some inorganic raw materials are required. So what are the raw materials required for photosynthesis? These raw materials are water and carbon dioxide. Clear? Some mandatory conditions are also required. The conditions which are required for photosynthesis is presence of sunlight and presence of chlorophyll. Chlorophyll is the green colored pigment which is present inside the chloroplast of leaves. Clear? Chloroplast जो cell organelle है, these are the colored plastids which contain chlorophyll green pigment to provide green color to the leaves. ठीक है, तो यहाँ पर जो chlorophyll और sunlight है ये mandatory conditions हैं for photosynthesis and the raw materials are water and carbon dioxide. Now come to the chemical equation of photosynthesis. This is 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. The food is synthesized in the form of glucose. It is C6H12O6 plus oxygen is evolved as a byproduct and 6 molecules of water are also released. Clear? हम कहते हैं plants ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस कौन सी है? दिस ऑक्सीजन. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस प्लांट्स रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर. क्लियर? सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. नाउ कम टू द प्रोसेस वेयर द फोटोसिंथेसिस विल टेक्स प्लेस, द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, यदि हम फोटोसिंथेसिस की साइट की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स. Now, of course, it takes place in the leaves because the chloroplast is present in the leaves. ठीक है, और प्लांट के जो भी ग्रीन पार्ट्स है जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है. क्लियर? तो फर्स्टली वी विल नो अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की साइट जनरली हम कहें तो लीव्स, थोड़ा और डिटेल जाए तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स, और डिटेल जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन होती है और स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो उसके बारे में हम शॉर्टली अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्टली लीव्स के बारे में. लीफ इज बेसिकली ग्रीन कलर स्ट्रक्चर. यदि हम बाहर से इसको देखें, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज लाइक दिस. Clear? This is the leaf lamina. This is the apex part. This is midrib. Midrib is divided into some smaller veins. So these are the veins. एंड वेन्स के बाद भी हमें यहाँ पर और छोटे छोटे वेनलेट्स का नेटवर्क देखने को मिलता है. दिस इज द वेनलेट्स. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछें, व्हाई ओनली द लीफ इज डिजाइन्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस लीफ में ही क्यों होता है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इनसाइड द लीफ. ठीक है, ये हमें पता है कि क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीफ में ही होता है. लेकिन यदि हम और भी चीजें इसके बारे में देखें तो आप देख रहे हैं इस लीफ के अंदर एक प्रॉपर नेटवर्क प्रेजेंट है वेन्स एंड वेनलेट्स का. ठीक है, अ प्रॉपर नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज प्रेजेंट सो दैट द प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इज देयर. ठीक है, यहाँ से लीफ स्टेम पे जुड़ी हुई है, यहाँ से स्टेम जाइलम से लीफ जाइलम में वाटर आता है और लीफ
जाइलम से इन इस मिडरिम में और इन वेनलेट्स के पास, वेन्स और वेनलेट्स के पास। तो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द लीफ हैज अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड वाटर इज द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दैट्स व्हाई द लीफ इज डिजाइन्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें प्लांट के किसी और पार्ट में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे प्रॉपर वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क है वाटर की प्रॉपर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज द इंपॉर्टेंट रीजन। सेकंड वन, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इज देयर, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। थर्ड वन, ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अभी हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ी देर बाद। जो लोअर सरफेस है हमारे पास, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ है, वहां पर स्टोमेटास की प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, दीज स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड फॉर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज के लिए वहां पर स्टोमेटास प्रेजेंट है, सो दैट द लीफ इज डिजाइन्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सेस ऑफ गैस जो भी होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना है, ऑक्सीजन को रिलीज करना है, तो वहां पर स्टोमेटास प्रेजेंट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है लीफ में फोटोसिंथेसिस के होने का। एक और रीजन हम कह सकते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज लार्ज, लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि लीफ जो होती है इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, लार्ज सरफेस एरिया है, सो दैट इट कैन इजीली एब्जॉर्ब द सनलाइट ना। इस तरह से लीफ हमारे पास फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, इजीली सनलाइट इसके ऊपर आती है, और जो इसमें फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये फोटोसिस्टम्स उस लाइट को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद में हमारे पास वाटर का फोटोलिसिस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। क्लियर? तो ये कुछ हमारे पास रीजंस हैं जिनकी वजह से लीफ में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, बाकी प्लांट के किसी और पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। कुछ हर्बेशियस प्लांट हमारे पास होते हैं जिनका स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, और वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्योंकि क्लोरोफिल का अमाउंट वहां पे प्रेजेंट होता है। तो जहां भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। नाउ कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम आते हैं। लीफ में अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस हमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, द बैरल शेप्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, सिंगल सेल्ड लेयर हमारे पास ही होती है। तो दिस इज अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। क्लियर? नीचे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस, अगेन द बैरल शेप्ड सेल्स आर देयर। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में भी सेल्स कैसी होंगी, बैरल शेप्ड होंगी। तो दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, और ये भी सिंगल लेयर्ड ही होती है। लोअर एपिडर्मिस में हमें कुछ स्टोमेटास देखने को मिलते हैं। क्लियर? दीज आर द स्टोमेटास फॉर गैसियस एक्सचेंज। इनका अमाउंट लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा होता है, अपर एपिडर्मिस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते हैं, लोअर पे नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, अपर पे नहीं होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों सरफेस पे, दोनों एपिडर्मिस पे हमें स्टोमेटास देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द स्टोमेटास रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। अब हम आते हैं इसके अंदर की सेल्स पे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है, पैलिसेड सेल्स, these are the
पेलिसेड पैरेन्काइमा। क्लियर? तो ये हमारे पास पेलिसेड सेल्स प्रेजेंट है। दिस इज द वैक्यूल, ना लार्ज वैक्यूल इज देयर एंड अ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलेगी। सारी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आपको, क्योंकि लीफ का स्ट्रक्चर है तो लीफ में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? दीज सेल्स आर पेलिसेड सेल्स। दिस इज द पेलिसेड सेल। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर हमें कुछ सेल्स और देखने को मिलेंगी जिनके बीच में हमें एयर स्पेसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो एयर स्पेसेस विल बी देयर। दीज सेल्स आर ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे इसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे लीफ के, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वेस्कुलर बंडल्स। These are the vascular bundles and these are the spongy parenchyma cells having air spaces. तो ये क्या है? Spongy parenchyma. This is spongy parenchyma. Clear? ये जो हमारे पास अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पूरा पार्ट है, इंक्लूडिंग पेलिसेड सेल्स and spongy parenchyma, this complete part is called as mesophyll cells. क्लियर? ये है हमारे पास mesophyll cells। तो यहां पर आप देख रहे हैं लीफ के अंदर हमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। A large number of chloroplast is there. That's why the number of chlorophyll is also large in the leaves. And the presence of stomata is for the gaseous exchange and transpiration. This is the internal structure of leaf. ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि लीफ ही फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों डिजाइन है। Now come to the structure क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि लीफ में भी फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद हम स्टोमेटास का स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं, किस तरह से स्टोमेटास का स्ट्रक्चर है। तो फर्स्टली द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जनरली द क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ना। हमने क्लास 9th में सेल के बारे में पढ़ा हुआ है ना, सेल का जो चैप्टर हमने वहां पढ़ा है, वहां हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में काफी डिटेल देखा हुआ है। It is a double membranous structure. Clear? This is outer membrane and this is the inner membrane. Clear? क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। Why it is semi autonomous organelle? Because it contain its own DNA and ribosomes. क्लियर? इसलिए हम इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनल है डीएनए की वजह से रेप्लिकेट हो सकता है। इसके अंदर हमें इस तरह से जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड इस तरह से कुछ स्टैक्स ऑफ कॉइन्स, जिस तरह से हम एक के ऊपर एक कॉइन रख देते हैं, इस तरह के स्टैक्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से भी हम देखते हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इस तरह से यहाँ पे फोल्ड होकर कुछ स्टैक्स बनाती है। दीज आर द स्टैक्स, इनको हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, दीज आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। क्लियर है? इस तरह के बहुत सारे स्टैक्स इस ग्रेना में हो सकते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट में हो सकते हैं। सपोज दिस इज द वन अगेन, दिस इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। क्लियर? इस तरीके से ये हमारे पास प्रेजेंट है। दिस
complete structure is called as granum. Clear? It is the granum. और यहां से यदि हम एक सिंगल स्टैक को निकाल लें, this single stack is called as thylakoid. Clear? और ये सारे क्या है? ग्रेनम. प्लूरल फॉर्म में हम इसे कहते हैं ग्रेना. क्लियर है? दिस इज द ग्रेनम. और सिंगल यदि हमने इसकी एक निकाल ली है स्टैक, दैट इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड. इसके अंदर यहां पर एक जेल लाइक फ्लूइड भी भरा हुआ है. दैट जेल लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. ठीक है, इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा. ये जो बीच में हमारे पास ये लैमेली है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली. क्लियर? इट इज द स्ट्रोमा लैमेली. यहां पे इसका अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है. सो दिस इज द सर्कुलर डीएनए. Ribosomes are also present there. These are the ribosomes. Basically, inside the chloroplast, 70S type of ribosomes are present. ठीक है, ribosomes are mainly of two types, 70S and 80S, in prokaryotic cells and in the mitochondria and chloroplast of the eukaryotic cell. 70S type of ribosome is present. It has its two subunits, a larger unit and a smaller unit. Larger unit is of 50S and smaller unit is of 30S. Clear? ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. Basically, the process of photosynthesis completes in the two steps. That is light reaction and dark reaction. ठीक है, light reaction of the photosynthesis will complete in the membrane of thylakoid. Thylakoid की membrane के अंदर light reaction of the photosynthesis complete होती है and dark reaction of the photosynthesis completes in the stroma of chloroplast. ठीक है, तो ये साइट हमें याद रखनी है बहुत अच्छे से. इसके बारे में हम बहुत डिटेल क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं. फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म किस तरह से होता है ना. अभी हमें सिर्फ शॉर्टली इंट्रोडक्शन देखना है. तो यहाँ पर 11th क्लास में हम बहुत डिटेल देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है. अब हमें ये क्लियर हो गया लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दिस क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में. थैंक यू वेरी मच.